Hello my dear students, I welcome you again. Today I am taking the important topic of material control in second version. So second technique of material control is setting up of levels. So levels को set करना, levels को fix करना, that is the prime duty in material control. तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाउ मच देयर आर लेवल्स, यानी लेवल्स हमें क्या बताते हैं, हाउ दीज लेवल्स आर सेट अप बाय द कंसर्न. तो लेवल्स का सेटिंग दैट इज आवर सेकंड टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल आफ्टर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे लेवल्स के पॉइंट कितने हैं. वी हैव मेन 5 लेवल्स इन द कंसर्न. हमारे मेन 5 लेवल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल, सेकंड इज मैक्सिमम लेवल, थर्ड इज मिनिमम लेवल, फोर्थ इज एवरेज लेवल एंड फिफ्थ इज डेंजर लेवल. तो हमारे 5 लेवल्स आर देयर. These are fixed by the concern for material control so that this should be providing a signal about purchasing of raw material or not purchasing of raw material, ताकि हमें ये बता सकें कि कब हमें मटेरियल परचेज कर लेना चाहिए और कब हमें मटेरियल की परचेज को स्टॉप कर देना चाहिए. So these are levels. तो सबसे पहले मैं नंबर 1 लेवल के बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे, दैट इज रीऑर्डर लेवल. अगर हम इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, रीऑर्डर मीन अगेन ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, यानी वी हैव टू व्हेन again order for material in the organization or when we have to purchase the material again in the organization. हमें अपनी कंसर्न में कब मटेरियल को दोबारा परचेज करने का ऑर्डर देना चाहिए. So that is kind of signal given by this level. तो ये लेवल हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि व्हेन वी शुड परचेजिंग द मटेरियल अगेन फॉर अवर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. तो इसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल. री मींस अगेन, ऑर्डर मैंने ऑर्डर फॉर मेकिंग परचेजेस अगेन इन द कंसर्न. तो सेकंड हम आएंगे जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम लेवल. A maximum level is a signal which shows that after attaining this level in the concern, we should stop the purchasing of material. यानी अगर हमारा ये लेवल हमने टारगेट अचीव कर लिया इन द कंसर्न, वी शुड नाउ स्टॉप द परचेजिंग ऑफ मटेरियल. हमें मटेरियल की परचेज को स्टॉप कर देना चाहिए, अदरवाइज there shall be consequences in the concern. अब consequences के बारे में मैंने वैसे लिस्ट भी बनाई हुई है कि why we are fixing this level. हम इस लेवल को क्यों फिक्स करते हैं? Because there is a limited space of go down. अगर हम इसके मैक्सिमम लेवल को ओबे नहीं करेंगे, there shall be various consequences in the concern. तो जनरली अभी तक मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि it is a signal where we can know that now we have to stop the material purchase in the concern. नंबर 3 हम यहाँ पे आ रहे हैं जिसको कहते हैं मिनिमम सेफ्टी लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल. यानी मिनिमम लेवल इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक लेवल. So it is the level which provides the safety to the concern, safety to the manufacturing concern. That safety means if this point is not attained or this point is below a particular point, then our interruption in production may happen. अगर हम इस लेवल से बिलो चले जाएंगे, it means there may be interruption in production or shortage of material. तो it means this level must be maintained at all times. हमें मिनिमम लेवल को मेंटेन करके चलना होगा, क्योंकि अगर हम इससे बिलो जाएंगे then that will be hampering the production, that will be disturbing the production. It means we should protect the shortage of raw material. तो shortage of raw material की प्रोटेक्शन के लिए हम एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जिसको कहते हैं मिनिमम लेवल.
that is a safety level. This level must be maintained by the concern for continuous production. अगर हमें continuous production करनी है तो minimum level हमेशा ही हमारे पास procure रहना चाहिए. That should continue always in the concern. Number 4 level is average level. So average level is the condition for the average procurement of material. It means that is a normal level that should be maintained in the organization. That is neither maximum level nor minimum level. That is the middle level. अगर maximum level और minimum level के middle की हम calculation करें, that becomes average level. It means यहाँ पे हमें ये सिग्नल मिलता है कि हमें अभी मटेरियल परचेज कर लेना चाहिए. That is not the upper point. अभी तक हमारा upper point नहीं है. We can continue the purchasing in this level. हम अपनी परचेज को कंटिन्यू कर सकते हैं in the of regarding material control. Number 5th is the danger level. So danger level means when we have not sufficient material in our store control. जब हमारे स्टोर में sufficient material available नहीं है and we have to arrange the emergency purchases. जब हमें emergency purchase करनी होती है, that becomes the danger level. It means that emergency purchase must be costlier as compared to regular purchase. यहाँ जो भी हमने लेवल में परचेज किए, these were regular purchases with discount purchases. But when we are approaching the last danger level, it means we have to purchase at costlier purchases because we want to continue the production. Otherwise, our production shall be interrupted. अगर हम ये डेंजर लेवल में परचेज नहीं करेंगे, कॉस्टलियर इमरजेंसी परचेज नहीं करेंगे, तो हमारी प्रोडक्शन में इंटरप्शन आ सकती है. इट मींस वी शुड प्रिवेंट द कंसर्न फ्रॉम डेंजर लेवल. तो ये एक लेवल है जो हमें बताता है कि वी शुड बी ऑलवेज अपवर्ड टू दिस लेवल. यानी इस बिलो लेवल से हमें अपवर्ड रहना चाहिए. वी शुड कंटिन्यू विद द रेगुलर परचेजेस as these are required by the concern. तो ये हमारे 5 levels हैं. अब मैं every level we have to discuss individually. अब हर लेवल को थोड़ा हम इंडिविजुअल डिस्कशन देना चाहते हैं. नंबर 1 हमारे पास होगा रीऑर्डर लेवल. दैट इज द प्राइम लेवल इन द कंसर्न. इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें बताता है when we have to continue the purchases again and again. When we order the purchases again and again, that is known as reorder level. अगर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करें, so there may be 2 types of information in the concern. हमारे इंफॉर्मेशन जो है that may be 2 types हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं. अगर हमें सम में मिनिमम लेवल प्रोवाइड किया गया है, तब हमें अगर रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन करनी है, देन फार्मूला विल बी लाइक दिस. तब हम करेंगे मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी. दैट विल बी फर्स्ट फार्मूला. तो ये तब अप्लाई होगा जब हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है, डाटा में गिवन है कि मिनिमम लेवल इज गिवन फॉर द कंसर्न, सेफ्टी लेवल इज ऑलरेडी प्रोक्योर्ड इन द कंसर्न एंड इट्स यूनिट्स आर गिवन फॉर द कंसर्न. देन वी हैव टू प्रोक्योर दिस फार्मूला. तो मिनिमम लेवल हमें गिवन होगा, उसमें हमें प्लस करनी होगी कंजम्पशन. जितनी हमें और कंजम्पशन रिक्वायर्ड है फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल, तो जितनी हमें कंजम्पशन रिक्वायर्ड है दैट विल बी प्लस विद द मिनिमम लेवल दैट विल बी गिवन इन द सम. और कंजम्पशन भी हमें गिवन होगी, कितनी हमें कंजम्पशन चाहिए मल्टीप्लाइड बाय द टाइम. इट मींस टोटल कंजम्पशन को हम प्लस करेंगे. दैट विल बी फर्स्ट आंसर ऑफ रीऑर्डर लेवल इफ मिनिमम लेवल इज गिवन. Second formula about reorder level will be when minimum level is not provided. जब हमें minimum level provide नहीं किया गया, so I have to take this illustration. मैं side by side इस illustration को ले रहा हूँ जहाँ पे हमें minimum usage given है production के बारे में और maximum usage भी हमें given है.
तो यहाँ पे हमें लेना होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, जितनी हमारी अपनी फैक्ट्री में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जितनी कंजम्पशन मटेरियल की रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बनाने में जितनी मैक्सिमम कंजम्पशन हमें रिक्वायर्ड है, दैट विल बी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे हम लेते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और टाइम और लीड टाइम। अब लीड टाइम का मतलब है कि कितना हमें टाइम उस मटेरियल को प्रोक्योर करने में लगेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन टाइम कितना रहेगा फ्रॉम द डिलीवरी टू द ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कब वो रीच करेगा, कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी मंथ्स और हाउ मेनी डेज इट विल टेक। तो उस टाइम को भी हम कंसीडर करेंगे, जितना हमारा टाइम होगा, जिसको हम कहते हैं लैग टाइम, जिसको हम कहते हैं लीड टाइम और जिसको हम कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। तो जितना मैक्सिमम कंजम्पशन हमें चाहिए, जितनी हमारी कंजम्पशन रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट शुड बी टेकन इनटू केयर इन एडवांस। तो रीऑर्डर में हम ये दोनों हमारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इनकी हम एडवांस केयर करते हैं, कितनी हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन रिक्वायर्ड होगी प्रोडक्शन प्रोसेस बनाने में और कितना वो टाइम लेगा रॉ मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने में। तो अगर मैं इसकी इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखूं तो ये गिवन है डिलीवरी पीरियड, यानी डिलीवरी टाइम कितना लगता है, ये गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल ए का हमने लिया 4 to 6 weeks, it means 4 is the minimum time and 6 is the maximum time. It means जितनी हमारी मैक्सिमम यूजेज होगी, अगर मुझे रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है तो मुझे लेना होगा मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू मैक्सिमम टाइम। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी रीऑर्डर लेवल। इट मींस this much of quantity we have to again order for production process, otherwise our production shall be interrupted। नहीं तो हमारी प्रोडक्शन में इंटरप्शन हो सकती है, that may be disturbed, that will be shortfall in production। तो हमें प्रिवेंट करने के लिए, शॉर्टफॉल को प्रिवेंट करने के लिए हमें रीऑर्डर लेवल पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी हमें मटेरियल की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। सो दैट रिक्वायरमेंट इज गिवन इन दिस इलस्ट्रेशन। जैसे मैंने डाटा लिया फॉर एग्जांपल, तो ये होगा मैक्सिमम यूजेज 150 यूनिट हमें चाहिए किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए और उसका मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मेरे पास 2 मटेरियल्स हैं इन द इलस्ट्रेशन मैंने बनाया इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये होगा मटेरियल ए एंड बी। तो मटेरियल ए का आंसर होगा 150 मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे हमें बोथ टाइम्स गिवन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मटेरियल ए के लिए मुझे मैक्सिमम टाइम लेना होगा 6 वीक्स। अगर मुझे मटेरियल बी का रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना होगा तो मुझे करना होगा सेम मैक्सिमम यूनिट्स, दैट इज यूजेज इज 150 इनटू मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे गिवन है 2 to 4, 2 इज द मिनिमम, 4 इज द मैक्सिमम। तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। इट मींस वी कैन कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल बाय कंसीडरिंग मैक्सिमम कंजम्पशन, कितनी इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन में और कितना मैक्सिमम रास्ते में टाइम लगेगा। लीड टाइम इज द गैप टाइम बिटवीन फ्रॉम सप्लायर टू द परचेजर। जितना सप्लायर से परचेजर पे पहुंचने में जितना टाइम लीड होगा, लीड टाइम गैप होगा, दैट विल बी नोन एज ए लीड टाइम। यानी मैक्सिमम टाइम को हम कवर करेंगे और मैक्सिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करके दैट विल शो द अमाउंट कि हमें इतना ऑर्डर कर देना चाहिए फॉर द कंसर्न। अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रीऑर्डर लेवल हमारी प्रोडक्शन को सेफ रखता है, दैट प्रिवेंट्स, दैट गिव्स कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, दैट प्रिवेंट्स शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस सिग्नल के अनुसार हमें अपने मटेरियल को परचेज कर लेना चाहिए। तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक हमारे पास मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन, जितनी रिक्वायर्ड है उसको प्लस करेंगे, देन रीऑर्डर लेवल यानी उतने
उतने लेवल को हमें परचेज कर लेना चाहिए। और सेकंड फार्मूला, जितनी उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है मटेरियल की और मैक्सिमम टाइम जितना लगेगा फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर टू परचेजर तक, जितना लीड टाइम होगा उसको कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द टोटल यूनिट इन आंसर। उसको हम कह सकते हैं रीऑर्डर लेवल। इतने लेवल की परचेज हमारे पास होनी चाहिए। अब मैं सेकंड अपने लेवल की तरफ जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल को हम क्यों फिक्स करते हैं? व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स फॉर फिक्सिंग इन एडवांस? मैक्सिमम लेवल को क्यों फिक्स किया जाता है? दैट इज वेरी सिंपल। नंबर वन है अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल। हमें अपनी कैपिटल को लिमिटेड लगाना होता है, कितनी कैपिटल को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हम मेंटेन कर सकते हैं फॉर इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री के लिए कितना हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो उसको कंसीडर करते हुए हमें मैक्सिमम मटेरियल फिक्स कर लेना चाहिए। और बियॉन्ड दिस, अगर हम मैक्सिमम के ऊपर परचेज करेंगे, दैट विल बी गिविंग नेगेटिव इफेक्ट्स टू द प्रोडक्शन। वो हमें ज्यादा कॉस्टलियर प्रोडक्शन देगा, दैट विल बी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्शन। तो नंबर वन हमारा पैरामीटर होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल। सेकंड हम लेते हैं गोडाउन स्पेस अवेलेबल। वी हैव लिमिटेड गोडाउन स्पेस। तो हमें पहले अपनी फिक्सिंग करके रखनी होती है कि हमें इससे ज्यादा मटेरियल हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हमें गोडाउन स्पेस के अनुसार हमें मैक्सिमम लेवल फिक्स करना होता है। नंबर थर्ड, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर्स। अब जितना हमारे प्रोडक्शन का पोटेंशियल होगा, जितनी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, हमारी मशीन्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, उसको कंसीडर करके हम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को पहले ही फिक्स कर लेते हैं, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। और इससे ऊपर अगर हम स्टोर करेंगे, दैट विल बी गिविंग नेगेटिव इफेक्ट टू द प्रोडक्शन, हमें लॉस देगा और हमारे पास स्टोरेज जो होगी दैट विल बी डिस्टर्ब, दैट विल बी नेगेटिवली इफेक्टेड। तो कहने का मतलब हमें जितनी रिक्वायरमेंट करनी उतनी हमें रिक्वायरमेंट करनी होगी। वी शुड नॉट बी स्टोरिंग एक्सेस। नंबर फोर होगा टाइम लैग। तो हमें टाइम लैग को भी कंसीडर करना पड़ता है फ्रॉम ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग द मटेरियल, यानी टाइम लैग के अनुसार हमने अपना मैक्सिमम लेवल फिक्स कर लिया। अगर हम इससे ज्यादा स्टोर करेंगे वो हमें that will be give us negative effect, that will be hampering production, that will be giving more cost of production, that will be giving obsolete production, यानी obsolete production होगी, raw material will be destroyed। तो ये सारे हमारे इल इफेक्ट होंगे अगर हम मैक्सिमम लेवल से अबव जाएंगे। और लास्ट होगा सीजनल नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल। There is a seasonal nature. It means whenever producing the goods for winter, it means these will not be useful in summer. So इसका मतलब सीजनल इफेक्ट को भी हमें कंसीडर करना होगा। एंड वी शुड नॉट स्टोर एक्सेस ऑफ मटेरियल, वी शुड प्रिवेंट स्टोरिंग ऑफ एक्सेस ऑफ मटेरियल। तो हमें एक्सेस मटेरियल की स्टोरिंग से अपने आप को प्रिवेंट करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्टर्ब और रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मैक्सिमम लेवल हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, बियॉन्ड दिस लेवल वी शुड नॉट गो फॉर परचेजिंग, सो वी शुड स्टॉप द परचेजिंग। तो एक साइन होता है, अगर हम इस साइन को ओबे नहीं करेंगे देन वी शैल बी डिस्टर्बिंग, वी शैल बी वेस्टिंग अवर लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारा गोडाउन उतनी कैपेसिटी को बियर नहीं कर पाएगा, हमारा मटेरियल लॉस होगा, देयर शैल बी ऑब्सोलीट मटेरियल, देयर शैल बी वेस्टेज ऑफ मटेरियल, सो ऑल द इल इफेक्ट्स शैल हैपन। तो कहने का मतलब मैक्सिमम लेवल हमें बताता है कि बियॉन्ड दिस वी शुड नॉट स्टोर द मटेरियल। अब इसका मैं थोड़ा फार्मूला डिस्कस करना चाहता हूं। ये होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बिफोर दिस आई हैव टू गो विद द रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले मुझे रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन करनी होगी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन हो सकती है। रीऑर्डर क्वांटिटी मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम।
अगर हम ये फार्मूला पुट करते हैं वी कैन गेट द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें एक सिग्नल, एक सिम्टम प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड नाउ स्टोर रीऑर्डर लेवल, यानी अगेन परचेज करना या स्टोर करना दैट शुड बी प्रिवेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्टोर किया जाएगा दैट विल बी वेस्टिंग ऑफ आवर प्लानिंग और वेस्टिंग ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो इसके लिए हमने रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन कर लेनी है। इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो सकती है रीऑर्डर क्वांटिटी। अब जैसे हमें गिवन है रीऑर्डर क्वांटिटी, इस इलस्ट्रेशन में गिवन है वी हैव टू पुट दिस फॉर मटेरियल ए और मटेरियल बी। यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम यूजेज को मैंने जैसे इस इलस्ट्रेशन में लेना है दैट विल बी 50 यूनिट्स फॉर दिस एग्जांपल। तो 50 को मटेरियल ए के लिए लेंगे और मिनिमम टाइम, क्योंकि हमें मटेरियल ए के लिए मिनिमम और मैक्सिमम टाइम गिवन है, सिमिलरली बी के लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है। तो जहां पे मिनिमम कंजम्पशन है मिनिमम हम यूजेज ले लेंगे और मिनिमम टाइम विल बी फॉर ए 4 वीक्स, और डी के लिए हमारे एग्जांपल में होगा 2 वीक्स। मल्टीप्लाइंग टू दिस वी कैन गेट द आंसर। बड़ा इजीली हमें आंसर मिल जाएगा इंफॉर्मेशन से। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का हमारा फार्मूला है, पहले दोनों यानी रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस किया जाए, देन इन माइनस इन होल ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। ये हम फार्मूला पुट करेंगे, दैट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एंड वी कैन गेट द आंसर। अब नंबर थर्ड जिसका हम कंसेप्ट बताना जा रहे हैं दैट इज मिनिमम लेवल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज द सेफ्टी लेवल, और जिसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल इज द पॉइंट where every organization should procure the material always in hand। हमारे कंसर्न के पास इतना मटेरियल यानी मिनिमम स्टॉक लेवल शुड बी प्रोक्योर्ड इन हैंड फॉर ऑलवेज, हमारे पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू फेस द डेंजर लेवल, नहीं तो हमें डेंजर लेवल फेस करना पड़ सकता है। सो दैट विल ब्रिंग मोर कॉस्टलियर परचेजेस, इट मींस मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है विद एफिशिएंसी विद लेस कॉस्ट, इट मींस वी शुड प्रोक्योर सेफ्टी स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। ये एक ऐसा सिग्नल है जो हमें बताएगा कि अगर हम इसके बिलो जाएंगे दैट विल बी stopping our production, that will be interrupting our production or giving us production at more cost। सो अगर हमें इकोनॉमी लेवल पे काम करना होगा, इट मींस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन लेनी होगी, वी शुड प्रोक्योर ऑलवेज मिनिमम लेवल, यानी हमें एवरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने मिनिमम लेवल को प्रोक्योर करके चलना होगा। इट मींस वी शुड नेवर गो बिलो द मिनिमम लेवल। अब इसका हम फार्मूला लेते हैं जिसको हम सेफ्टी लेवल कहते हैं, दैट शुड बी प्रोक्योर्ड ऑलवेज बाय एवरी कंसर्न। तो इसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस, ये हमने रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन पहले हमने कैलकुलेशन में चले गए, वी हैव कैलकुलेटेड रीऑर्डर लेवल, देन माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल टाइम, दैट विल बी सिंपल फार्मूला फॉर मिनिमम लेवल। अब रीऑर्डर लेवल हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, उसमें हमें माइनस करना होगा नॉर्मल कंजम्पशन। अब नॉर्मल कंजम्पशन को हम लेते हैं दैट इज एवरेज कंजम्पशन। जैसे हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वांटिटी ए के लिए, जैसे हमें गिवन है नॉर्मल यूजेज that is given total 100 units। if this is not given, अगर हमें normal given ना हो, we can calculate on the basis of average। so average is known as normal, it means whenever minimum is given, maximum is given, we have to do the plus of minimum and maximum divided by 2, that will be average। if average is not given, if normal is not given, then average will be normal। तो average को ही हम normal कर लेते हैं, हमें मिनिमम गिवन होती है, दोनों को हम प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे दैट विल बी नॉर्मल कंजम्पशन। तो यहाँ पे वही होगा नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल टाइम। टाइम का भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम गिवन है, प्लस यानी गिविंग प्लस मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी नॉर्मल और एवरेज टाइम।
तो ये हमारा कैलकुलेशन का मेथड होगा। इस वे से हम नॉर्मल या एवरेज की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मटेरियल ए के लिए मिनिमम है 4 और मैक्सिमम है 6, इट मींस इनका नॉर्मल टाइम क्या होगा, ये बनेगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 5 वीक्स। तो ये हमारे ए के लिए होगा। सिमिलरली बी के लिए करेंगे 2 + 4 मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 3। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 3। तो यहाँ पे हमारे पास होगा नॉर्मल कंजम्पशन, दैट इज एवरेज ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम इनटू एवरेज ऑफ मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। सो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, वी कैन कैलकुलेट द सेफ्टी लेवल। अब यहाँ पे हमें सेफ्टी मिलता है। सो सेफ्टी लेवल शुड नेवर बी डिस्टर्ब। सो अगर हमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रखनी होगी तो ये सिग्नल हमें बताता है whenever we are going below we should immediately purchase। हमें इमीडिएटली अपनी परचेजेस को फुलफिल कर लेना चाहिए, so that we should not go below this level, otherwise there shall be costlier purchases one organization has to make। यानी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्टलियर परचेज करनी होगी, दैट विल बी मेकिंग मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट विल बी गिविंग मोर लॉसेस। तो कहने का मतलब मिनिमम लेवल इज द सिग्नल, बिलो दिस वी शुड नेवर अचीव द टारगेट। इसके बिलो में हमें कभी भी प्रोसीड नहीं करना। अगर हम बिलो क्वांटिटी अगर हमारी गोइंग जा रही है, इट मींस वी शुड इमीडिएटली प्रोक्योर बाय रीऑर्डर लेवल, अगेन हमें परचेज कर लेना चाहिए एंड वी शुड फुलफिल द सेफ्टी लेवल। तो नंबर 4 हमारे एवरेज लेवल। सो एवरेज लेवल इज द एवरेज ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। सो दैट इज द नॉर्मल लेवल। इट इज नॉट ए कॉस्टलियर लेवल, इट इज द नॉर्मल लेवल एंड नॉर्मल लेवल इट इज द सेफ लेवल। लेकिन बिलो दिस अगर हम एवरेज लेवल से भी हम बिलो जाएंगे, वी कैन गो टू द डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल इज नोन एज ए रिस्की लेवल, costlier level, giving more cost of production, giving more losses as compared with the regular purchases। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं एवरेज लेवल। सो एवरेज लेवल का बड़ा सिंपल फार्मूला है जिसको हम कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल माइनस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम ये फार्मूला लगा देते हैं जिसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल माइनस half of economic order quantity। अब reorder quantity means we have discussed as economic order quantity। अगर इसका हाफ जैसे हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, मिनिमम लेवल हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें अगर हम हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करते हैं दैट विल बिकम एवरेज लेवल। और हम ये भी कह सकते हैं मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी ऑफ एवरेज लेवल। अब लास्ट में हम आते हैं दैट इज ए डेंजर लेवल। सो डेंजर लेवल इज एवरेज कंजम्पशन यानी एवरेज लेवल इनटू मोर परचेजिंग फॉर इमरजेंसी पीरियड और मोर ऑर्डर फॉर इमरजेंसी परचेज। अब हमें मैक्सिमम परचेज करनी होगी इमरजेंसी, बिकॉज वी आर एट एवरेज कंजम्पशन। जितनी हमारी एवरेज कंजम्पशन किसी प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम लेंगे, जिसको कहते हैं एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूनिट्स रिक्वायर्ड। और नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन का हमने फार्मूला लिया था मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। जितनी एवरेज कंजम्पशन हमें चाहिए किसी प्रोडक्शन के लिए मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यानी रास्ते में अगर गुड्स की डिलीवरी में मैक्सिमम लीड टाइम कितना लगेगा उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने लीड टाइम दोनों यहाँ पे कंपेयर किए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। जितनी हमारी एवरेज रिक्वायरमेंट है मटेरियल के लिए, क्योंकि हमने मिनिमम लेवल से हमें बिलो हम जा चुके हैं, इट मींस नाउ आई हैव टू मेक इमरजेंसी परचेजेस, अदरवाइज आवर प्रोडक्शन शैल बी इंटरप्टेड। तो इसका मतलब है हमें एवरेज कंजम्पशन जितनी रिक्वायर्ड होगी मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम। जैसे हमारे ए के लिए गिवन है 6 वीक और बी के लिए मैक्सिमम हमारे पास गिवन है 4 वीक। तो अगर बी की रिक्वायरमेंट होगी जितनी इसकी एवरेज रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम टाइम।
तो इसका मतलब जितना टाइम मैक्सिमम चाहिए इतने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा, दिस क्वांटिटी शुड बी परचेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, शुड बी प्रोक्योर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली. दैट विल बी इमरजेंसी. Emergency means outside the purchases. That will be special purchases giving more costlier. तो हमें costlier production देगी. It means we should immediately procure the costlier production. Otherwise our organization shall be interrupted. हमारी production में interruption हो सकती है. तो इट मीन्स वी शैल बी गिविंग इंफॉर्मेशन. तो इस बेस में सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन करते हैं. सेकंड हमारा सीक्वेंस में हो सकता है मैक्सिमम लेवल, जिसके बियॉन्ड, जिसके अबव वी शुड नॉट नेवर स्टोर द मटेरियल. मिनिमम लेवल जो हमारा लेवल बताएगा जिसके बिलो हमें जाना ही नहीं है. अगर हम देयर इज ए शॉर्टेज वी शुड इमीडिएटली प्रोक्योर बाय रीऑर्डर लेवल. एवरेज लेवल इज द नॉर्मल लेवल और डेंजर लेवल जो होगा दैट इज द स्पेशल level, that is the emergency purchases level. It means that is a more cost to production. So इसलिए हमें ये सारे levels के बारे में information होनी चाहिए and this information can be calculated by this formula. तो हमने यहाँ पे information ली and I have calculated reorder level. तो हमने यहाँ पे लिया मटेरियल ए की कैलकुलेशन हमने की है मैक्सिमम यूजेज जितनी रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम टाइम, ये हमारा रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है. सिमिलरली बी के लिए हम कर सकते हैं मैक्सिमम यूजेज, बी का मैक्सिमम टाइम होगा 4 वीक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस. दिस इज द फार्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल. तो रीऑर्डर लेवल मींस हाउ मच क्वांटिटी वी शुड इमीडिएटली परचेज so that again we should never be facing any drawbacks of interruption in production. Thank you very much.